So guys, you can see that's how our Dharavi slum homes look like. It's a very small slum house, but we are very proud to say that we are having a very nice and good time here in the houses. It's all well equipped. You can see the cylinder here and a gas stove where we are cooking some delicious meals, and something storage. It's a mixer machine for mixing of fruits and vegetables. And it's a bit exhaust here because more often we don't get that much unsophisticated, so it's really very helpful to take the hot air out. And it's a small fan here, and she's my auntie. Assalamu alaikum. खैरियत कैसे हो? हाँ. So guys, she's one of my relative, and she's kind of an auntie, and she's also a neighbor of mine. So I'm very delighted to introduce to her, and her name is Razia, and so I've clearly explained her about our project, our plan, that we are working to make things great for them by providing them some tablets and water purifier, which will give them a healthy life. So I'll be asking all the questions in Hindi, so I'll be also texting a few things here on the video so that you guys can understand what's going on the interview. By the way, I liked your machine here. It's a kind of air cooler. Okay, so कैसे हो? खैरियत? So as I mentioned that her name is Razia, so I'll be asking her a few questions now. So आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है आंटी? नल से मिलता है. तो नल एक बार मैं दिखा दूँ आपका, कहाँ पर है नल? So guys, I'll show you the water from where we are getting the water. So yeah, so this is the tap here from where we are getting the water, and I'll just pull it up the lever and the water comes out. It seems like a very nice water, but obviously it's contaminated water, and we have few more other alleys here. So from the water pipe, from where the water pipe is coming, you can see some of the rats are doing some parties here. So the pipes, you can see clearly there is a pipe. So this is a pipe from where the water is coming from all the way, so you can get an idea. I'm showing you because you should get an 100% accurate, genuine idea that the water can get affected, which is affecting our children's. And सो खाला, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चल रहा है. आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे तो 12 है. ओके, सो शी इज हैविंग 12 किड्स. एंड लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं? दोनों 6. Okay, so she is very lucky woman that she is having beautiful 6 beautiful girls and 6 beautiful boys. And I'll be asking few other questions to her now. पानी को गरम करते हो क्या? गरम करके ठंडा करके पीते हैं. गरम करके ठंडा करके पीते. गरम करते हो मतलब साल भर गरम करते हो, या मतलब सिर्फ बारिश के टाइम पे? आपको तो पता है कि पानी गंदा आता है, तो बारिश के टाइम पे गरम करके पीते हो या साल भर ऐसे ही पीते हो? साल भर गरम करके. साल भर गरम करके पीते. तो अभी बारिश के टाइम की बात करते, तो कभी ऐसा हुआ है क्या बारिश के टाइम पे आपके कभी बच्चों की तबीयत खराब हुई है? बहुत दफे खराब हुई. अभी उसकी भी तबीयत खराब ही है. किनकी? वो अब्दुल्ला की. Abdullah ki. So she's having a son whose name is Abdullah. Currently he's affected from the viral disease, waterborne disease. So she's very concerned about that situation. So she's telling that all the time she's having the problems with the monsoon, and on the monsoon time especially. So किस तरीके की बीमारी मतलब उनको हुई, किस तरीके की प्रॉब्लम हुई है उनको? ऐसा उल्टी, बुखार, सर्दी. So vomiting and fever and cold. So Abdullah got 3 problems. एक बार नहीं, महीने में ना समझो 2-3 बार हो गया उसका.
So this is not just one time. In every month, twice or thrice, she's facing the problem with her son. सबसे ज़्यादा कब होता है ये? सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चे ज़्यादा बीमार होना शुरू होते हैं अभी बरसात में तो ज़्यादा ही होगा। बरसात में. So mostly in the raining time the kids are getting affected, she says. And हर बच्चों को होता है? Yeah, every kids faces that problem. इससे पहले इसका तो बेहतर है। Okay, what's his name? नाम क्या है इनका? मोहम्मद सरफराज. सरफराज, कैसी है तबीयत अभी तुम्हारी? अच्छी है. Sarfraz, she's saying that Sarfraz more often get the problem with the waterborne diseases. Actually, guys, this is very heartbreaking for me, and I really thank to Medidrop that has given me a chance to ask few questions to the people so that they can share their heart feelings. So आप उसको सॉल्व कैसा करते हो? मतलब आप उसको सही कैसा करते हो? जैसे अभी अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई, सरफराज की तबीयत खराब हो गई, तो उनको सही कैसा करते हैं? उसको दवाखाने में लेके जाती, दवा खाने जाती, और पानी है ना बिस्लरी मंगाती थी, बिस्लरी पानी. So whenever they're feeling sick, but she's having 12 kids, so it's a very difficult task. Actually, her husband is selling vegetables in the market and taking care of all the kids. So she's telling that she's serving them Bisleri water, not the boiled water, because she doesn't trust anymore about the boiling water, because the water is affecting a lot to her family. आ रही है तो और कोई वजह नहीं आपको लगती है? नहीं. अभी पूरा चेक करा है ना, तो चेकअप में मालूम नहीं पड़ता. हाँ बराबर. और भी एक प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा दिखा है यहाँ पर कि बाजू में एक गटर भी है जहाँ से हमारे पानी की पाइप आ रही है. तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से पानी जो हमको थोड़ा गंदा आ रहा है, पाइप जंग लग गई है पुरानी. Okay, so she said that more than 15,000, which is like I think it's around more than $100. More than $100 she has already spent, and then ये जो 70,000 रुपये जो हुआ था रजिया खाला, ये कब हुआ था? ये मतलब अभी 4 महीने के पहले. 4 महीने के पहले मतलब she has spent 70,000. So I think it's a lots of money. I think it's near 1,000 USD she has spent to just care of one child. नाम क्या था वो बच्चे का? Abdullah. So Abdullah means in 12 children. फिर सफीरुल्लाह, फिर सरफराज, तीनों जन का तबीयत खराब. उसके बाद मेरा हो गया. So जमीन को जानते हैं ना, शरीर खराब हुआ था तो So 70,000 first she has spent to one kid. His name is Abdullah, and again he's running in sick now. Again he's having a problem with the waterborne diseases. So again she's spending the money. So मतलब 1 लाख रुपया पूरा ये 4 महीने में सिर्फ दवा पानी में गया. So around 1 lakh rupees, which is 100,000 rupees, she has just spent in 4 months. And if she wants to save the life of the kids, so it seems like all the money her husband is earning, doing all the hard work, which is just spent in in the medicals and medicines, which is a very heartbreaking and a very heartfelt story that I've heard. तो अभी मतलब पिछली बार में अब्दुल्ला को, सरफराज को और सफीउल्लाह, so 3 kids has already has been faced this problem. और अभी फिर इस चीज़ को जो है सुधारने के लिए हमको पानी का जो है मामला सही करना पड़ेगा. और क्योंकि इतना पैसा अगर आप खर्च करेंगे सिर्फ दवा पानी में, तो फिर खाएंगे पिएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसा, और फिर बच्चों की लाइफ का क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा. तो ये बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है. बीमारी अगर आती रहेंगी तो फिर कैसा जिंदगी चलेगी? सही बोल रहा हूँ? बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत परेशानी जैसा आ जाती है.
तो सबसे बड़ी तकलीफ जो है ये बीमारियों के वजह से जो है, कभी 8,000 10,000, कभी 1 लाख रुपया, कभी 70,000 रुपया, ऐसा जो है कंटिन्यूसली आप देते ही जा रहे हो, डॉक्टरों को पेट पाल रहे हो आप मतलब. So all the hard work she's means her husband is doing, all the money is going just on the medical facility. This is a very serious concern. तो आपको खुश होना चाहिए कि हम इंशाल्लाह आपको जो है इंशाल्लाह ये मसला आपका जो है जल्द से जल्द हल कर देंगे इंशाल्लाह. और बस आपकी दुआएं हैं हमारे साथ में, आप दुआ दो. प्लीज़ प्रे फॉर अस, फॉर आवर प्रोजेक्ट, फॉर आवर मेडी ड्रॉप. इंशाल्लाह हमारी कंपनी जो है जल्द से जल्द आपका. तो बेचारी बहुत गरीब है, कोई बड़ा नहीं. So guys, this is really very heartbreaking, and I can't express my feeling right now that how much money we people are spending on the medical. After all, we need to do that, or else we can't leave our kids to die. So I'm अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम सलाम. कैसे हो हजरत? नाम क्या आपका? मोहम्मद अशरफ. मोहम्मद अशरफ. और बच्ची का नाम? रोशनी. नौशीन. रोशनी. नौशनीन. रोशनी. 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 माशाल्लाह. रोशनी means a bright lighter. I hope that she'll get a good education and she will raise her parents' name by going on a very good school. And अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका आपा? रेहाना खातून. रेहाना खातून. जी. आपा आज मैं यहाँ पर बहुत एक इम्पोर्टेंट मकसद से आया हूँ, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमारी एक कंपनी है जो वाटर प्यूरीफायर मशीन बनाती है और एक ऐसा टैबलेट बनाती है जिससे 6 महीना जो है पानी आपको बिस्लरी पानी आता है. और सबसे बड़ी जो तकलीफ आज धारावी में, क्योंकि मैं भी आपका पड़ोसी और मेरे को पता है कि यहाँ पर कैसी कैसी बीमारियाँ, वायरल फीवर, इन्फेक्शन और तमाम तरीके की बीमारियां आती है, लगती है हमारे बच्चों को. आता है, बीमार पड़ जाता है बच्चे लोग सब. हम लोग भी कभी कभी खांसी होने लगता है, कभी सर्दी होने लगता है, कभी बुखार लगने लगता है, और इतना इतना बदबू पानी आता है, पीने से तबीयत भी खराब हो जाता है इंसान की. तो आपा आपको पानी कहाँ से मिलता है आपको? पानी यही गटर के पानी आता है, नल लगा हुआ है, तो पानी आता है तो बदबू करता रहता है. बराबर. हाँ बराबर. तो इनको जो आपको पाइप से पानी आता है, जो पानी की जो पाइप है वो गटर के बहुत करीब है. जी जी जी. सच बात है. हाँ गटर में है, गटर के अंदर है. So she's telling that from the water drainage, bad sewage, where all the washroom and toilet water means the sewage, it is directly connected the pipe, so that's why the water are coming bad water. So मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप पानी को गर्म करके बच्चे को पिलाते हो या ऐसे ही पिलाते हो? नहीं, ऐसे ही पिलाते हैं. ऐसे ही पिलाते हो. जी. तो पानी क्यों नहीं गर्म करते आपा? नहीं करते हैं. अगर आप पानी गर्म करोगे तो हो सकता है कुछ % कम हो जाए बीमारियों के चांसेस. नहीं, कहाँ हो रहा पानी है. पीवे नहीं करता, बच्चे लोग बोलते हैं ठंडा पियेंगे. Okay, so the kids doesn't prefer to drink the cool water, the hot water. That's why they are not boiling the water. But I think they should boil the water. But no problem. So the kids doesn't drink the boiled water. And अब मेरा दूसरा सवाल ये है, तो जो बारिश के टाइम पे ज्यादा बीमारियां लगती है या जब बारिश नहीं होती तब बीमारी लगती नहीं, है? हमेशा रहता है. जब पानी पिएंगे तो बीमारी तो रहबे करेगा. सही बात. गटर का पानी आएगा, पिएंगे तो हमेशा बारिश हुआ नहीं हुआ इंसान के बीमारी होबे करेगा. पानी पिएगा तो बीमारी हेबे करेगा. Okay, so she means to say that हम when तो गरीब आदमी है, कहाँ से पानी लाएंगे, खरीद के कहाँ से पिएंगे? बिस्लरी पानी नहीं खरीद नहीं सकते. पीते हैं. पैसा भी रहेगा तब ना पिएंगे खरीद के. वो तो और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है. अब आप जैसा बोले कि बीमारियां होती है, तो किस किस तरीके की बीमारियां होती है? जैसे भाई ने बोले मलेरिया होता है, डेंगू होता है, तो ऐसी कौन सी? बुखार हो जाता है, सर्दी. हाँ.
फीवर एंड कोल्ड जैसे और पेट में दर्द होता है, ये सब पेट सब में दर्द होता है, क्या मालूम काय के लिए होता है। पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, वही पानी की वजह से ही होता है। हाँ। बीमारी तो पेट से ही आती है ना, पेट से ही बीमारी शुरू होती है। और जब ये तकलीफ आ जाती है, बीमारी आती है, जैसे बच्चों और आपको जब आती है, तो उसको सही करने के लिए आप क्या करते हो? बीमारी ठीक करने के लिए कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर के पास? जैसे बड़ी हॉस्पिटल में जाते हो या क्लिनिक में जाते हो? छोटा मोटा में दिखा देते हैं, ये पैसा ऐसा लगता है। बड़े हॉस्पिटल में पैसा लगता है, इसलिए पर क्लिनिक में भी तो हाँ। पैसा ही लगता है ना। हाँ। तो वहाँ पर भी तो पैसा लगता है। तो कितना तक लगता है पैसा? कितना तक लगता है, जितना की दवाई दे, जितना हाथ ताकत रहता है इंसान को उतना इलाज जैसे कराते अभी हैं। पिछली बार बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, हाँ। तो कितना रुपया खर्च हो गया था? 40, 30 ऐसे 20, 15 हो जाता है। मतलब कोई उसकी द सेम थिंग लाइक 10,000, 15,000, 20,000। का फीस 130 रुपया है, बाकी दवा देता है वो अलग से आता है। तो टोटल कम से कम 1,000 रुपया पकड़ लो। 1000 नहीं तो 500-600 रुपया तो हो जाता है। Around 500 rupees to 600 rupees they just need to spend to get cure for just initial basis। मतलब जैसे पहले तो 500-1000 रुपया खर्च करते, अगर उसमें ठीक हो गया तो ठीक है, नसीब की बात। अगर उसमें भी ठीक नहीं हुआ तो फिर जैसे साइन वगैरह जाना पड़ता है, बड़ी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वो पर्ची लिख के देता तो फिर लेकर जाना पड़ता है। बराबर बराबर। बराबर। बस इतना ही आपसे पूछना था सवाल। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या काम है। हमारी एक कंपनी है अमेरिका में, वर्जीनिया में एक कंपनी है, जो कंपनी का नाम है माडी ड्रॉप। तो हम लोग जो है वाटर प्यूरीफायर कंपनी है। और जो लोग भी इंटरव्यू हमारे पास दे रहे, तो हम उनको जो है एक मशीन ला के देंगे, जो पानी एकदम बिस्लरी का पानी आपको देगा, जो 99.9% आपको एकदम प्योर पानी देगा, एकदम साफ बिस्लरी पानी देगा। और आपको एक ऐसी तरीके की टैबलेट देगा, एक टैबलेट रहेगा वो आप अपने टैंक में डाल देंगे। एक बार टैंक में डाल देंगे तो 6 महीना, मतलब एक ऐसा मटका लेंगे। हाँ, जैसे देखो ये मटका, इट्स अ इंडियन रेफ्रिजरेटर। तो हाँ, और ये मटका बराबर, इसमें अगर आप एक बार वो डाल देंगे टैबलेट, तो 6 महीना आपको एकदम बिस्लरी जैसा पानी मिलेगा। और तमाम तरीके की जितनी भी पानी की बीमारियाँ होती, जैसे टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, मलेरिया, जितनी भी बीमारियाँ होती, वो सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। मतलब वो आपके बच्चों को या आपको नहीं लगेगा, और उससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपका पैसा भी नहीं खर्च होगा, और आपके बच्चे जो है एकदम सेहतमंद होंगे, अच्छे ताकतवर तंदुरुस्त होंगे। और जैसा आप बोले कि पेट का भी दर्द होता है, वो तकलीफ होता है, तो वो सारी तकलीफें जो है ठीक हो जाएगी, और पेट का सिस्टम, डाइजेशन वगैरह भी सब इंशाल्लाह सब सही चलेगा। तो आप खुश हो? जी जी। तो आप कुछ कहना चाहोगे हमारी कंपनी को? क्या कहना चाहिए? कुछ भी खुशी से। हम लोग का मदद करें। हाँ, हम लोग का मदद करें बस। और आप? हम लोग की मदद करेगा, और क्या कहेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपका कुछ रोजी रोटी भी चल रही थी, और मैं बीच में आके आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो और मैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम बच्चों के लिए भी कुछ पढ़ाई वगैरह का वो सब का भी इंतज़ाम कर रहे, और काम धंधे के लिए भी मदद कर रहे। हमारी जो कंपनी है हमारे लोगों के काम धंधे के लिए भी मदद करेगी इंशाल्लाह, तो ताकि आपका फैमिली जो है खुशहाल इंशाल्लाह चलते रहे, सब सिस्टम चलते रहे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। So guys, I have already took interview of 2 women who are the most responsible women for their family, whose eyes were like telling all the truth about the situation. A very horror story I can say.
that I've been just witnessed, and I'm sure that Medidrops will definitely provide us a quick resolution. And I've taken 2 interviews for today, and tomorrow I'll took more and more interview of the people here who are struggling with this situation, and accordingly we will be running this project continuously and hope for the best. Love you guys.